واہ واہ ایک کمزرف کا احسان اتارے آ جائیں. اور شعر یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں. یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں. تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزار ہے. جانا جو رستے میں جانا جو رستے میں جانا جو رستے میں ہائے کیا لوگ تھے ہر شام دعا کرتے تھے. ہر شام دعا کرتے تھے. لوٹ کر سارے پرندوں کی قطاریں لوگ تھے ہر شام دعا کرتے تھے. لوٹ کر سارے پرندوں کی مدتوں پہلے یہ قدر بھی آپ حضرات کی نظر ہے صاحب. مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی. مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی. جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی. مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی. جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی. اور آپ حضرات کے لیے خاص طور سے یہ شعر میں عرض کر رہا ہوں جو آپ کے احباب بھی یہاں موجود ہوں. شعر یہ کہ مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی. جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی. اور خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری. خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری. پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیوٹی مل گئی. خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری. پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیوٹی مل گئی. پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیوٹی مل گئی. میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولوں کی طرح. میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولوں کی طرح. اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی. اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی. میں اسے انعام سمجھوں یا سزا کا نام دوں. میں اسے انعام سمجھوں یا سزا کا نام دوں. انگلیاں کٹتے ہی تحفے میں انگوٹھی. میں اسے انعام سمجھوں یا سزا کا نام دوں. اب بہت اب ہم بھی تھکے جائیں. زیادہ کتنا پھر زیادہ سنا دیں آپ لوگ بلائیے گا نہیں. آپ کی باری ہے جب تک آپ کا جی چاہے. آپ یہ تاریخ رقم کر رہے ہیں ہمارے. بس اب آپ کا جو جی چاہے بس وہ سنائیے. سب اہل علم سے جی چاہ رہا ہے. کبھی کبھی مجھے مزہ آتا ہے شعر سنانے میں. اور میں عجیب و غریب ہندوستان کا شاعر ہوں. پیسے ویسے میں نہیں سناتا ہوں, موڈ کو سناتا ہوں. یہ کام میں نے دوسروں میں چھوڑ دیا تو وائفوں کی طرح کرتے رہے. میرا تو موڈ ہے بس. سنیے دربار میں جب آئیے سر. تھینک یو. دربار میں جب عہدوں کے لیے سنیے گا. خالد جی یہ کل سے بدت تھے کہ صاحب پاکستان ہندوستان میں 30 سال سے شعر نہیں کہا جاتا. آج میں نے انہیں قائل کیا اور میں نے کہا جب میں پاکستان جاتا ہوں تو وہاں جنگ لکھتا ہے کہ منورانہ سے یہ سوال کیا ہی نہیں جاتا ہے کہ آپ کس سے متاثر ہیں, لیکن آپ کا خود اپنا لہجہ ہے وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ دربار میں جب عہدے کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے. دربار میں جب عہدے کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے, قوموں کے سر جھک جاتے ہیں
चकरा के हया गिर जाती। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाते हैं। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, क्या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाते हैं। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाते हैं। और शेर साहब समाप्त फरमा रहा हूँ, ये फकीर याद रखिएगा कि फकीर शेर सुना कर गया था, या लोकसभा गिर जाती है, पहले भी हथेली छोटी थी, पहले भी हथेली छोटी थी, अभी हथेली छोटी है। क्या कहने पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी हथेली छोटी है। क्या कहने, कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। और एक और इसमें शेर का मुझे याद आ रहा है, कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। और कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। और याद नहीं आ रहा, गुजर जाती है। मुझे यहाँ जाके पढ़े दिया अपनी मौज में। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकान। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। क्या कहने, सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं। सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में, आप देखें मतलब फारसी और अरबी यूं 64 की तरह खड़े हुए हैं। सिर्फ मतलब ये है कि दुनिया में अजीब गरीब हमारा सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। फजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते, फिजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते। जमीन पर जो सुकून है आसमान में नहीं मिलता, जमीन पर जो सुकून है आसमानों में नहीं मिलता। पराए गम में अपने आप को बर्बाद कर लेना, पराए गम में अपने आप को बर्बाद कर लेना, ये जज्बा अच्छे अच्छे खानदानों में नहीं मिलता। पराए गम में अपने आप को बर्बाद कर लेना, ये जज्बा अच्छे अच्छे खानदानों में नहीं मिलता। शेर गुरु गुजरात से एक मतलब है कि कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है, कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है, वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है। कभी कभी लतीफ शेर है, तो मेरे पैरहन से आती है, वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है। हमारे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा कि टूटता है तो आवाज धन से आती है। हमारे दिल से तो अच्छा है आईना क्या कि टूटता है तो आवाज छन से आती है। शेर में ही शेर करना चाहता था
5-6 बरस पहले पुरानी ये गजल होगी। मैं अपने वालिद का इंतकाल हो गया था, उसके 2-3 महीने के बाद मैं मुशायरे में गया इंडियन एम्बेसी की जद्दा। रात में उम्रा करने के लिए गया। जब मैं उम्रा करके निकल रहा था हदूद मक्का के बाहर, मतलब उसमें जो हरम के बाहर आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक टैक्सी के जो ड्राइवर बैठे हुए थे उनमें एक ड्राइवर बिल्कुल हूबहू मेरे वालिद की शक्ल का था। लेकिन मुझे इतना खिंचाव हो रहा था कि जैसे मेरे वालिद हूँ, तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं इसके पीछे पीछे जाऊँ। लेकिन मैंने कहा जितने मेरे दोस्त शायद वो हंसेंगे, तो सभी को मालूम ही है, तो मैं चुप हो गया हूँ। लेकिन जैसे मुझे कोई खींच रहा था अपनी तरफ। फिर मैं घर आया, मैंने आके अपनी अम्मी से कहा, मेरा अम्मी उस दिन वहाँ हुदूद हरम के बाहर एक ड्राइवर मिला था, टैक्सी वाला कोई, वो बिल्कुल अब्दू की तरह था, जैसे दाढ़ी वाड़ी करते हुए, जैसे आदमी लोग हमारी मूछे मूछे रखते थे। मेरी अम्मा कहने लगी, भैया हो सकता है वही रहे हूँ, इतनी गुनाहगार भी तो नहीं रहे, मुमकिन अल्लाह ने अपनी खिदमत में लगा ली। तो जब तक शौहर जिंदा होता है वो खुदाए मजाजी होता है, लेकिन जब शौहर मर जाता है तो औरत के लिए वो सबसे बड़ा मौजूदा होता है। फिर तो भैया वही हूँ, शायद तुम्हारा बाबर हूँ। मैंने इसे शेयर किया, मैं आपसे लिए हमारी बेटियां बहनें सब बैठी शेयर करना चाहता हूँ। तो कभी कभी तुम मेरे पैर से आती, वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है, मैं इसके जिस्म पे काफूर मल के आया था। मैं इसके जिस्म पे काफूर मल के आया था, मगर गुलाब की खुशबू कफन से आती है। तो हम आप जो है शाखे हैं अपने बुजुर्ग। मैं उसके जिस्म पे काफूर मल के आया था, मगर गुलाब की खुशबू कफन से आती है। कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है, वो महफिल में नहीं खुलता है, तन्हाई में खुलता है। समंदर कितना गहरा है, गहराई में खुलता है। वो महफिल में नहीं खुलता है, तन्हाई में खुलता है। समंदर कितना गहरा है, ये गहराई में खुलता है। और शेर ये है कि काफिले की दाद चाहूंगा तो पहले बैठे हुए देखिएगा, वो महफिल में नहीं खुलता है, तन्हाई में खुलता है। समंदर कितना गहरा है, ये गहराई में खुलता है। जब उससे गुफ्तगू कर ली तो फिर शजरा नहीं पूछा। जब उससे गुफ्तगू कर ली फिर शजरा नहीं पूछा। हुनर बखियागरी का एक तुरपाई में जब उससे गुफ्तगू कर ली तो फिर शजरा नहीं पूछा। हुनर बखियागरी का एक तुरपाई में। मुझे जहाँ जहाँ से शेर बहुत, मुझे बीमारी बाद में काफी असल में तो बहुत टूट गया था, इसीलिए मैं चला भी आया। मैंने कहा चलो तो दिल बहले थोड़ा सा। बहुत अच्छा। उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं, उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं, जैसे इस मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं। उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं, जैसे इस मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं। हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे, हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे। मुफलिसी तुझसे बड़े लोग भी दब जाते हैं। हमने बाजार में देखे हैं क्या मुफलिसी तुझसे बड़े लोग भी दब जाते हैं। मालूम नहीं कैसी जरूरत निकल आई, मालूम नहीं कैसी जरूरत निकल आई। सर खोले हुए घर से शराफत निकल आई, मालूम नहीं कैसी जरूरत निकल आई। सर खोले हुए घर से शराफत निकल आई। और शेर ये है कि मैदान से अब लौट के जाना भी है दुश्वार, मैदान से अब लौट के जाना भी है दुश्वार। किस मोड़ पे दुश्मन से कराबत निकल आई। मैदान से अब लौट के जाना, मैदान से अब लौट के जाना भी है दुश्वार। किस मोड़ पे दुश्मन से कराबत निकल आई। शेर ये है कि अब हम
تیری چاہت پہ یقین کرنے لگے ہیں واہ اب ہم تیری چاہت اب ہم تیری چاہت پہ یقین کرنے لگے ہیں اب تجھ سے بچھڑ جانے کی صورت نکل آئی واہ 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 اب ہم تیری چاہت پہ یقین کرنے کرنے لگے لگے اب تجھ سے بچھڑ جانے کی صورت نکل آئی اس بدل کا شعر آخر یہ ہے کہ وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دیتی وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دیتی میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دیتی میں خوش ہوں کہ احسان کی تھوڑے دور ضرور سنائیے صاحب کیا کہنے آپ ہی کا حصہ ہے وہ سنیے سماج میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی غزل کے دن کا شعر سنیے صاحب 30 سال اچھا ہوا کہ میرا نشہ بھی اتر گیا اچھا ہوا کہ میرا نشہ بھی اتر گیا تیری کلائی سے یہ کڑا بھی اتر گیا اچھا ہوا کہ میرا نشہ بھی اتر گیا ڈاکٹر صاحب کی 5 بیویاں یا تو ایک ہی موڑ دیں ریکوائرمنٹ اچھا ہوا کہ میرا نشہ بھی اتر گیا میرا نشہ بھی ہوتا تیری کلائی سے یہ کڑا بھی اتر گیا کل میں آپ کے شہر سے رخصت ہو جاؤں گا شعر یہ ہے کہ رخصت کا وقت ہے اچھا ہوا کہ میرا نشہ بھی اتر گیا تیری کلائی سے یہ کڑا بھی اتر گیا شعر یہ کہ رخصت کا وقت ہے یوں ہی چہرہ کھلا رہے رخصت کا وقت ہے یوں ہی چہرہ کھلا رہے میں ٹوٹ جاؤں گا جو ذرا بھی اتر گیا میں ٹوٹ جاؤں گا جو ذرا